Hello everyone, welcome to Minever Education. So today we will discuss the weekly current affairs, the world this week, third week of Feb 2022. Okay, so Jai Hind once again. Before we are going to start, I want to discuss that if you are preparing for the CAT examination, MBA CET, CMAT, SNAP and MET, TIS, MET and many more, and if you are targeting the top MBA colleges in India, so don't worry, batch is launched by the Minever Education where you can get the live classroom coaching, books, shortcut tricks for your examinations and many more doubt solving session where you can solve your doubts with the help of the faculty members. And you can also get the recorded videos, topic wise test, mock tests, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of the groups. You can also get the 10,000 plus question series for your practice test, and you can also get the mentorship program with the help of examination mentor. You can also visit our centers if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai. So we have 3 centers, Dadar, Borivali and the Vasai. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581454. So you can visit our center also, and you can visit our website which is called minevereducation.com/MBA entrance. First question says, India signed agreement with United Nations World Food Program for the distribution of wheat to which country? There are the 4 options over here: Maldives, Afghanistan, Syria, श्रीलंका। दोस्तों आप लोगों ने पहले ही एक दो तीन दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ एक हेल्प करने की बात कही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हीट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो कौन से कंट्री के द्वारा किया गया? यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। सो लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर इज द अफगानिस्तान। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सो इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 the MT for the wheat, and India is committed to send relief to Afghanistan as a part of a humanitarian assistance to be sent in truck convoys through Pakistan by road. So Rome headquarter WFP thanked India for the agreement to support Afghans who are facing humanitarian crisis. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, and Afghanistan is the country for this kind of the World Food Program for distribution of wheat. Okay, so next question, Medaram Jatra is a fair celebrated in which Indian state? कौन से स्टेट के अंदर ये यात्रा जो है वो सेलिब्रेट की जाती है? और ये यात्रा की अगर मैं हिंट दूं तो यहां पर आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि दैट इज अ सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, दैट इज अ सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस यात्रा, ठीक है, जो कुंभ मेला के बाद हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज दी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के अंदर इस तरीके की यात्रा हो रही है। मेदारम यात्रा इज द सेकंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया आफ्टर द कुंभ मेला सेलिब्रेटेड बाय कोयल ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना फॉर 4 days। ठीक है, 4 दिन की ये यात्रा होती है। तो यहां पर आप उसका फोटो भी देख सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सैंक्शन्ड 2.26 crores फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड to Medaram Jatra 2022. At present, the Jatra festival is biennial, celebrated by the Koya tribes in the collaboration with the Tribal Welfare Department in the Telangana. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। Medaram Jatra is related with the Telangana, जो सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया के अंदर, जो कुंभ मेला के बाद है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ilker IC, former Turkish Airlines chairman, has been appointed as the MD and CEO of which of Indian Airlines? ठीक है, सो SpiceJet, Indigo, एयर इंडिया एंड विस्तारा, ये जो इंडियन की एयरलाइंस है उसके अंदर IC को एक चेयरमैन बनाया गया है। तो कौन सी एयरलाइंस है इंडिया की? ठीक है, ये आपको लोगों को बताना है। सो करेक्ट आंसर इज द एयर इंडिया। ठीक है, तो एयर इंडिया को यहाँ पर रतन टाटा जी ने संभाला है, और MD और CEO यहाँ पर IC है, ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर आप उसका फोटो भी देख सकते हैं। सो द टाटा ग्रुप हैज अपॉइंटेड Alker IC, फॉर्मर तुर्किश एयरलाइंस चेयरमैन, एज एयर इंडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO. सो द डिसीजन इज इन लाइन एंड द टाटा ग्रुप्स प्लान्स टू अपॉइंट एन expatriate chief of the Run Air India, which it took after and over from the Indian government recently. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first institution set up under the National River Interlinking Policy। ठीक है, तो यहां पर जो नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी है, जिसकी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनी है, वो कौन है? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस आर हियर।
कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, कावेरी गोदावरी लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, गोदावरी कृष्णा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी और नर्मदा तापी लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी. सो करेक्ट आंसर इज द कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी. सो लेट अस डिस्कस द कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी. ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया और यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन किया गया. सो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी और उसके अंदर 11 लाख हेक्टर्स, ठीक है, 11 लाख हेक्टर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया फॉर दी अंडर द इरिगेशन डिपार्टमेंट. ठीक है, जो बुंदेलखंड के रीजन के अंदर पाया जाता है. और यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश के बीच में है. ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है. और KBLPA विल बी हेडेड बाय द CEO एट द लेवल ऑफ एडिशनल सेक्रेटरीट थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड बाय द 5 एडिशनल CEOs. ठीक है, तो यहां पर आप उसका मैप भी देख सकते हैं. ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश. ठीक है, उसके बीच में जो एक रिवर आती है, सो दैट इज कॉल्ड द बेटवा रिवर और यहाँ से जो निकलती है दैट इज कॉल्ड द कैन रिवर. ठीक है, उसके बीच में प्रोजेक्ट बनाया गया है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इंडिया का मैप है, जिसके ऊपर आप लोगों को शायद दिख भी नहीं रहा होगा. ठीक है, थोड़ा साइड में आ जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे जो है वो इंडिया का मैप है और उस रीजन के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है उसको बनाया गया है. ठीक है, फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के भी अंदर उत्तर प्रदेश इज हियर, मध्य प्रदेश इज ओवर हियर. ओके, एंड ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड द कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट. डन. ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है या तो होस्ट किया है. ठीक है, सो UNFCCC, नीति आयोग, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. सो करेक्ट आंसर इज द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो TERI, टेरी आप लोगों को याद रखना है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर उसका आप लोगो भी देख सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ लोगो ओवर हियर एंड इट होस्टेड द लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDC एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिग्रेटेड द समिट व्हिच वाज बेस्ड ऑन द थीम. उसकी थीम भी दोस्तों आप लोगों को पूछी जा सकती है फॉर द स्टैटिक GK. okay, and with respect to current affairs. So towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future. ठीक है, तो ये आप उसकी ये जो थीम है वो उसको आप लोग याद रख सकते हैं. towards a resilient planet and ensuring a sustainable and equitable future. So the keynote address will be delivered by President of Republic of Guyana, Dr. Irfan Ali, and the Deputy Secretary General of the UN. ठीक है, so the TERI with respect to the World Sustainable Development Summit. Let us move on the next question. Which institution has organized a Drecathon 2022 initiative to find a solution to counter darknet market? ठीक है, so दोस्तों I also discuss about the what is the meaning of the darknet over here. ठीक है, if I discuss or if I plot the one glacier in the sea, ठीक है, so there is a one glacier in the sea which is made by the suppose snow. ठीक है, so there are the 3 layers over. So फर्स्ट लेयर, देयर इज अ सेकंड लेयर एंड देयर इज अ थर्ड लेयर. ठीक है, तो पहले लेयर में जो हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टा, ट्विटर, तो देयर इज अ फर्स्ट लेयर. ठीक है, जो आप लोगों को यूज आसान तरीके से कर सकते हैं. सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड द डार्क वेब एंड थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड द डार्क नेट. ठीक है, सो डार्क नेट की अगर मैं बात करूं तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को बेचना, चिल्ड्रंस को किडनैप कर कर बेचना, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती है वो कहाँ पर होती है? डार्क नेट मार्केट के अंदर होती है. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. तो ड्रेकाथॉन 2022 है, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डार्क नेट मार्केट्स. तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ठीक है, तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो सकता है आंसर. ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब भी फाइनेंशियली कोई घपला होता है तो वो पिक्चर में आता है. ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई ऐसे टेररिस्ट अटैक्स होने वाले हैं तो उसकी जो खुफिया जानकारी है वो प्रोवाइड करने के लिए NIA का गठन हुआ था. एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अगर करप्शन का उसके ऊपर चार्जेस रखते हैं तो उसके ऊपर वॉच रखने के लिए और साथ ही साथ उसकी जो ट्रैकिंग मेथोडोलॉजीज है उसको यूज करने के लिए और अच्छी तरीके से जांच करने के लिए CBI यूज होता
है, ठीक है। तो अगर IAS है या IPS है उसके ऊपर अगर करप्शन के चार्ज लगते हैं तो भी CBI पिक्चर में आती है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। सो इन दिस क्वेश्चन सो करेक्ट आंसर इज द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको इनिशिएट किया गया था और यहाँ पर NCB इज ए लॉ एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है उसका यही दोस्तों एक एम है एट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, यूथ एंड टेक्निकल एक्सपर्ट टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू दिस काइंड ऑफ द डार्क नेट एरिया या सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए से ये सारी की सारी चीजें चलाई जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? ये किसके, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, हेल्थ केयर डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट का है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे? तो यहां पर देखिए ब्रिज का रोडवेज की कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है, रेलवे है, एयर ट्रैफिक जो है उसको भी, यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, उसकी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज की जा सकती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑफ द नेटवर्क्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स है, उसकी भी यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरी चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी, जो पवन चक्की जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को भी एनहांस कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं अप टू दी 2 to 5 गीगावोट्स, ठीक है, बाय द फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के अंदर होती है, इसके लिए हम कह सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? डन। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंस ऑफ G20 इन 2022, ठीक है। कौन सी कंट्री के द्वारा इसको होल्ड किया गया? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना या जापान? सो करेक्ट आंसर इज द इंडोनेशिया, ठीक है। सो इंडोनेशिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसीज ऑफ G20 इन 2022। द G20 सेकंड फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज FCBD जिसको बोला जाता है, मीटिंग टू प्रोड्यूस अ कम्युनिक ड्राफ्ट कंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटेजी टू टैकल फ्यूचर पेंडेमिक्स, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और उसकी दोस्तों थीम आप लोगों को पूछी जा सकती है, जैसे कि रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर जिसकी थीम है G20 फॉर दिस काइंड ऑफ द ईयर 2022। इज इट क्लियर? लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2022 डिफेंस एग्जीबिशन। सो दोस्तों ये जो चीज थी हम लोगों ने अपने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा। गोवा, चाइना, गांधीनगर एंड वाराणसी। सो करेक्ट आंसर इज द गांधीनगर हो सकता है, देख सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज गांधीनगर विच इज इन दी गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका फोटो याद रखें, 10 से लेके 13 मार्च के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा गांधीनगर के अंदर। और उसकी वजह से बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेगी, और बहुत सारी कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। 900 एग्जीबिटर्स एट द इवेंट, मोर देन 100 आर द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स। और दूसरी ओर ये जो एडिशन है दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 का, वो 12th एडिशन है जो कि यहाँ पर गुजरात के अंदर होगा। और जो 11th एडिशन जो हुआ था यूपी के अंदर लखनऊ में हुआ था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। 11th एडिशन यूपी लखनऊ, 12th एडिशन गुजरात गांधीनगर डिफेंस एक्सपो 2022। इज इट क्लियर? और यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ने भी इन्वेस्ट किया था। सो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमन वाज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस, ठीक है। तो जो पहली महिला बनी जो HIV क्योर हुआ वो किस प्रोसेस की वजह से हुआ, ये आप लोगों को प्रोसेस बतानी है, ओके। तो देयर आर द 4 प्रोसेस ओवर ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एंटीरिट्रोविरल थेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर इज द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये चीज है क्या। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये पहली महिला बनी जिसका नाम है ल्यूकेमिया पेशेंट, ठीक है। द वुमन इज ए ल्यूकेमिया पेशेंट एंड रिसीव्ड अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फ्रॉम द समवन with natural resistance to the AIDS causing viruses, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखे, यूएस की महिला है, यूएस वुमन है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द 6th अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन समिट हेल्ड, कहां पर उसको ऑर्गेनाइज किया गया 6th अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है। सो देयर आर द 4 ऑप्शंस ओवर हियर, ब्रुसेल्स, कैरियो, रोम एंड जोहान्सबर्ग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज द ब्रुसेल्स, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को एक फोटो भी दिखाया था अफ्रीकन यूनियन का। सो 17 फेब से लेके 18 फेब के बीच में 2022 के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर इसको हेल्ड किया जाएगा, विच इज कॉल्ड द 6th अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। एंड अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट वाज हेल्ड ऑन 17 एंड 18 फेब 2022। एंड यहाँ पर जो उसके को चेयर्ड रहेंगे वो प्रेसिडेंट रहेंगे अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, एंड प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, एंड ऑल्सो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन भी रहेंगे। इज इट क्लियर? और यहाँ पर उसका जो विजन है वो है रिन्यूड पार्टनरशिप के हिसाब से उसका ज्वाइंट विजन है। इज इट क्लियर? Done. Let us discuss the next question. Who have been conferred with Hilal Pakistan? ठीक है, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इन 2022। तो यहाँ पर किसको मिला था? बिल गेट्स को, मलाला यूसुफजई को, एलोन मस्क को और जिनपिंग को, किसको मिला था? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज दी बिल गेट्स। तो ये जो दोस्तों आप बिल गेट्स को देख सकते हैं, ठीक है। सो philanthropist and founder of the Microsoft Corporation, Bill Gates has been conferred, okay, Bill Gates, there is not Bill Gates, okay, Bill Gates has been conferred with the Halal of Pakistan, which is the second highest civilian award of the Pakistan। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। and he is the receiving the award of the co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, सो there is a Joe Biden over here। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म? तो इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिन्होंने यूपीआई प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय किया अपने अंदर? ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। सो करेक्ट आंसर इज द नेपाल, ठीक है। तो अगर आप इंडिया का प्रॉपर तरीके से मैप देखें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा मैप है, ठीक है। तो ये जो मैप है यहाँ पर पूरा नेपाल आ सकता है, यहाँ पर है भूटान, ये है चाइना, यह है बांग्लादेश, यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो ये जो नेपाल है, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर यूपीआई प्लेटफॉर्म डिप्लॉय किया गया है और ये पहला कंट्री बना है। इज इट क्लियर? सो नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम विच विल प्ले अ pivotal role in transforming the digital economy of the neighboring country, the National Payments Corporation of India, which is called the NPCI, okay, and the NPCI International Payments Limited, the international arm of NPCI, has joined hands with Gateway Payment Service GPS and Manam Infotech to provide the services। GPS is the authorized payment system operator in the Nepal, ठीक है, GPS याद रखिए। ओके, जीपीएस जो है वो गेटवे पेमेंट सर्विसेज है, बाकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है। इज इट क्लियर? ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 17, 18, 19 या 20 फेब, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी 20 फेब, ठीक है। आज 21 फेब होगी, उसके बाद उसके पहले जो 20 फेब थी तो वहाँ पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है सोशल जस्टिस डे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे ये बताना है इंडियन पॉलिटी के अंदर सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स है, ये कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। सो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ओवर द वर्ल्ड ऑन 20 फरवरी। एंड ये जो दिन है ये किसके रिगार्डिंग है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एनिमसली एडॉप्टेड द ILO डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन ऑन 10 जून 2008, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उसको मनाया जाता है। एंड उसकी जो थीम थी दोस्तों, ये आपको काफ़ी हद तक पूछी जा सकती है, वो क्या थी थीम? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। यू हैव टू मेंशन द विच काइंड ऑफ द आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन द सोशल जस्टिस। सो प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। ओके, लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 17, 18, 19 या 20? सो करेक्ट आंसर इज द 19 फेब, ठीक है। सो यहाँ पर आप उसकी प्रजाति देख सकते हैं, ये है पेंगोलिन, ओके। सो द वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd सेंचुरी सैटरडे ऑफ द फरवरी, ठीक है। 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी मंथ के अंदर जो तीसरे नंबर का सैटरडे आता है,
ठीक है, थर्ड सैटरडे जो आता है तभी उसको मनाया जाता है। सो इन 2022 द एनुअल वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 19 Feb 2022 एंड इट इज द 11th एडिशन ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, उस एम का इस दिन का यही एम है, द राइज अवेयरनेस अबाउट दिस यूनिक मैमल्स एंड स्पीड अप द कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो उसकी प्रजाति को एनहेंस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। एंड बेंगोलिन नंबर्स आर रैपिडली डिक्लाइन इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो एशियाई कंटिनेंट है एंड अफ्रीकन कंटिनेंट है, उसके अंदर ये जो प्रजाति है काफ़ी हद तक कम होती जा रही है, इसलिए इसको एनहांस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इज इट क्लियर? सो बिफोर वी कंप्लीट दिस सेशन आई वांट टू डिस्कस दैट if you are preparing for the CAT examination, MBA, CET, CMAT, SNAP, NMAT, TIS, MAT and many more, and if you are targeting the top MBA colleges in India, so don't worry, batch is launched by the Manever Education where you can get the live classroom coaching, books, shortcut tricks for your examinations and many more doubt solving sessions where you can solve your doubts with the help of the faculty members. And you can also get the recorded videos, topic wise test, mock tests, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of the groups. You can also get the 10,000 plus question series for your practice test, and you can also get the mentorship program with the help of examination mentor. You can also visit our centers if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai. So we have 3 centers, Dadar, Borivali and the Vasai. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581454. So you can visit our center also, and you can visit our website which is called manevereducation.com/MBA entrance. If you are preparing for the low entrance, MBA entrance, TIS examination or BB entrance, BEd entrance or SSC CGL, so don't worry, Manever Education is here. And if you are interested for this kind of the courses, so link is available in the description where you can fill the form very easily as per your requirement, and our counseling team will contact you. If you are looking for the online and live classroom coaching, so just contact the counseling team and our counseling team will guide you. If you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have 3 centers, Borivali, Vasai and Didar. So you can visit our center also, and you can visit our website which is called the maneveredu.com. and if you are the new family member of the Manever Education, so please subscribe our channel in the YouTube, and we have also social media platform where you can get the regular updates. Okay, so thank you, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान। वंस अगेन जय हिंद, बाय बाय।